Here we are going to talk about the chapter number 7, that is element of group 16, 17 and 18. 17, in group 17 there are the same way just like group 16. What are the element? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, adenine are the constitute of group 17 element. This element we called it as a halogen family. Same way, just like a group 16, group 17 is also form of ores as it is found in bones and teeth of the animal. We can make a various constitute from this element. Next, we will talk about the group 18, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the group 18, and group 18 is called as a noble gas group. Now, whatever I had talked to you about the group 17 and 18, that is the introduction part. Further, we will go step by step. First, we will talk about the oxygen family. How many members are there in oxygen family? That is 1, 2, 3, 4, 5. That is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Among them, there are few are metal, few are non-metal and some of them are metal. Now this is the very small introduction which I give mention in the slide, that if you have seen properties of oxygen family, what are the properties exactly is present in the oxygen family? That they have 6 valence electron. First. Second, we all know oxygen is a gas and rest of the member which is there that are solid form. Next, abundant on the earth and varieties of color. Definitely there are various elements, so definitely their particular element will show the particular character, so definitely their color should be different. Now if we come for oxygen family, now if I give the explanation about oxygen family, you should come to know that there are only this few members are there: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Apart from this, if we talk about the general electronic configuration of group 16, group 16 का general electronic configuration क्या है? NS2 NP4. Same way group 17 का क्या है? NS2 NP5 and for 18 which is stable, that is NS2 NP6. This is the basic electronic or you can say general electronic configuration of the elements. Now, if we talk in detail about the electronic configuration, here it go. Electronic configuration of the elements. You can see here oxygen. Here the atomic number of the oxygen is 8. So, based on that you can write here 2s2 2p4. This is the last orbital, means where you will get your field orbital, whether the orbital will, how the orbital will make stable. This is the outer electronic configuration you can see. Next, sulfur. Here the electronic configuration. Now based on the general electronic configuration, if you have seen all the element, this is the 2s2 2p4, 3s2 3p4. See, 4s2 4p4. Based on this, you can say the general electronic configuration is what? ns2 and np4. N will be anything, 1 2 3 4 5, and s will be their orbit, s orbital, where in which orbital it's placing. This is placing in s orbital and this one is placing in p orbital. So this is the general electronic configuration of oxygen family. Further, if we move about the fluorine. Fluorine family, which is a halogen family, not fluorine family, it is a halogen family. The very first element which is there in the halogen family, it is what? Fluorine, chlorine. Next, bromine, iodine and adenine. Here electronic configuration, as we had talked before, about the electronic configuration, that is NS2 and NP5.
Now we will correlate our electronic configuration with this. Fluorine atomic number is 9. So definitely our electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p5. 5 to 2, that is 9. So if we have looked about the chlorine, bromine, iodine, astenine, here you can see that is 3s2 3p5, here 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5. So definitely whatever the basic electronic configuration we had seen, that is came on this condition, NS2 and P5. Similarly, we will talk about the noble gas element. So noble gas, why we calling it as a noble gas? Because it is a stable form. If you have seen the electronic configuration, that is NS, if you have seen the basic general electronic configuration, it is NS2 NP6. So definitely there electrons which are the, if the say s orbital को अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो स्टेबल हो जाता है. Similarly p को 6 चाहिए तो वो स्टेबल हो जाएगा. So this is the stable form. So if you have seen this neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium only, as the atomic number is 2, so you can see here 1 is 2. Now which group number is also there and period number, they are placing in which period? You can see here 1 period, 2 period, 3 period based on that. As 18, now 2s2 2p6 for what? Neon. Argon same way you have seen 3s2 3p6. Krypton same way 4s2 4p6. Xenon same way 5s2 5p6 and radon same way 6s2 6p6. So as we had seen, the general electronic configuration of group 18 element are NS2 and P6. So this is fulfilling. So our electronic configuration is over. We will talk about the atomic and physical property. So जैसे अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हम लोग का कौन सा पार्ट है, ये हम लोग का इनऑर्गेनिक पार्ट है. तो जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में देखते हैं रिएक्शन और ऑल दिस थिंग, यहाँ पे हम लोग देखने वाले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टी, whether the compound is metal और मेटलॉइड, ये सब चीजें हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट में देखते हैं और ये हम लोग का इनऑर्गेनिक ही टॉपिक है. सो now we will talk one by one the characteristics of our group. First we will talk about the atomic and ionic radii of all the elements, of all the group of the element, that is group 16, 17 and 18. Now atomic and ionic radii. If we go in group 16, what they are telling, that it is increasing, element goes increasing as one move from oxygen to polonium, that is top to bottom. फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का ऑक्सीजन है, लास्ट हमारा पोलोनियम है. क्या बोल रहे हैं वो, एटॉमिक और आयनिक रेडाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. भाइयों भी वो इंक्रीज हो रहा है तो कुछ तो रीजन चाहिए, देयर मे बी सम रीजन व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन. एज द नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजिंग on going down the group, atomic and ionic radii also increasing from top to bottom. So we can say, based on this, what we can say, that across a period atomic और ionic radii जो है decreases with its increasing atomic number. इसीलिए है ये atomic and ionic radii का एलिमेंट्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए वो जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनका एटॉमिक और आयनिक रेडाई इंक्रीज हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ सेम शेल. अभी आपने टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, इफ यू गो थ्रू दैट, आयनिक एंथैल्पी का चार्ट है, आयनिक रेडियस का चार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट है,
चार्ट है. इफ वी कंपेयर दिस ऑल चार्ट, उसमें देखो, अगर आप देखोगे तो जैसे ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. इट इज मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, दैट इज 1314. और अगर हम लोग पोलोनियम का देख रहे हैं तो वो सबसे कम है. सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द ग्रुप 17, तो वैसे ही है. फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका ज्यादा है, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है बोल रहे हैं, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है बोल रहे हैं. तो व्हाई इट मे बी द रीजन? बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग इन द सेम शेल. दिस मे बी द रीजन, दिस मे बी वन ऑफ द रीजन. और जैसे हम लोग उसको भी ग्रुप 18 को भी कंपेयर करेंगे तो सेम वे हीलियम का जो कम रहेगा, बट नियॉन का जो है वो 116 है. सॉरी, हीलियम का है 2372. और जैसे हम लोग जाएंगे टॉप टू बॉटम तो वैसे से कम होते जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी एंथैल्पी. अगर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना जरूरी है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. if we see electronegativity of all the group, that is 16, 17, 18, it goes decreasing down the group. जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है. भाई वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? What may be the reason? Because oxygen has the highest electronegativity, that is next to fluorine. Halogen also having the high electronegativity. Fluorine is most electronegative in the periodic table. Now electronegativity of N is highest. Therefore, अभी ये क्यों high है? कुछ तो reason रहना चाहिए ना. There may be some reason. So what is that? The lone pair toward the nitrogen and hence more repulsion between bond pair. More repulsion है. अभी attraction नहीं है, वो क्या है? Repulsion है. इसलिए उसका bond angle highest है. After nitrogen के जो electronegative वो इसलिए decrease हो रहे. नाइट्रोजन के बाद वाले जो ग्रुप है उनका ये हाल है भाई, उनके इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे. तो क्यों डिक्रीज हो रहे? बिकॉज यू नो ऑन द एलिमेंट नाइट्रोजन पे 2 ऐसे डॉट रहते, दैट इज व्हाट द लोन पेयर. सो व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है वहां पे? मोर रिपल्शन हो रहा है बिटवीन द बॉन्ड. इसी वजह से उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में जो एलिमेंट्स है उसके बाद में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके है वो डिक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप. होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन, अभी इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर एंड फ्लोरीन हैज लेस देन क्लोरीन. नाउ व्हाट मे बी द रीजन? ऐसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, ये दिया हुआ है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट इज लेस देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट. ये क्यों है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें, हम लोग दोनों में कंपेयर करें. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू ऐड द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर. किस में जा रहा है पर वो? क्वांटम लेवल में. n दैट इज इक्वल्स टू 2. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या लिखते हैं? ns2 np6. तो n जो है, n स्मॉलर दैट इज n इक्वल टू क्वांटम लेवल एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन. यहाँ पे देखो अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या हो रहा है वहां पे? दे आर शोइंग द सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लेवल. अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ज्यादा रिपल हो रहा है. सेम वे अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 ये ले रहे, फॉर द n इज इक्वल टू 3, उसमें क्या हो रहा है? क्वांटम लेवल जो है क्लोरीन और सल्फर का, द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लार्जर रीजन ऑफ द स्पेस. जो वो स्पेस में प्रेजेंट रहेगा उसका वो क्या हो रहा है वहां पे? एडेड इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर स्टेबल के लिए तो व्हाट दे डू अ लार्जर रीजन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस. यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज क्या बोल रहे हैं? लेस देन दैट ऑफ सल्फर. और यहाँ पे फ्लोरीन का भी कम है क्लोरीन से. तो भाई क्यों कम है? देयर मे बी सम रीजन. सो दिस इज द रीजन. ये दोनों में फर्क है. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कितना रहेगा? फ्लोरीन का, सॉरी इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोरीन का कितना रहेगा? 333 और ऑक्सीजन का 349. बट अगेन ब्रोमीन का कम है
और उसका कम होते जा रहा है, बट इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में प्रॉब्लम है। एक तो हम लोग ने अभी देखा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडाई, ये कैसे एक तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी है, तो देयर मे बी सम रीजन व्हाई इट इज इन बिटवीन इंक्रीजिंग और व्हाई इट इज इन बिटवीन डिक्रीजिंग, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब क्या भाई, वो उसका दिखने में कैसे है, कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, डक्टिलिटी कैसा है, व्हाट अदर थिंग, वेदर इट इज मेटल नॉन मेटल, क्या ये सब प्रॉपर्टीज आता है फिजिकल। ये ऑल जो है, ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। नाउ हियर इट इज क्लियरली मेंशन 16 एलिमेंट, 16 जो है 16 ग्रुप, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। उसमें देखो नॉन मेटल कौन से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऊपर के 3 है, दैट इज कमिंग इन नॉन मेटल। मेटलॉइड कौन सा है, थैलेरियम, और मेटल कौन सा है, पोलोनियम। नाउ इफ आई विल रीड दिस वंस, ऑकर एज अ एलिमेंट एंड इन कंबाइंड स्टेट, डेफिनेटली एक एलिमेंट नहीं रहेगा वो, कुछ तो हम लोग कंबाइंड स्टेट में फॉर्म में रहेगा वो। फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड and oxygen number usually -2. Atom have 6 electron. Np जो है, Np हम लोग कितना Np4, तो atom have 6 electron और ns कितना है 2, 4 plus 2 6. Atom have 6 electron in the outermost energy shell. Often इसलिए वो -2 जा रहा है उसका oxidation number. Often exist as a diatomic and polyatomic as we know, O2S6. Exist in several allotropic form. Now I will describe one by one. ये है भाई, ये क्या है, जैसे हम लोग को पता है नॉन मेटल ये सब है, थैलेरियम मेटलॉइड है, पोलियम मेटल है, बट वन कैरेक्टर ऑल्सो दे आर शोइंग, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव विथ इट्स हाफ लाइफ ऑफ 13.8 डे। ये मेटल तो है बट और एक उसमें क्या कैरेक्टर है कि वो रेडियो एक्टिव है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सभी का इंक्रीज हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा रहेगा, इसका इससे इसका इससे। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। नाउ ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट जो है दैट शोज द allotropic property, that's it. This is all about the group 16 element. now ये डायटोमिक है बिकॉज O2 हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग पॉलीएटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, कभी कभी S8 भी फॉर्म होता है, एक पर्टिकुलर चीज हम लोग में होती है। वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। कोवैलेंट मतलब क्या, कोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या, क्या कर रहे हैं वो, कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फॉर्म हो रहा है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16। इतना ही पूछेंगे, आएगा तो ये सिर्फ 2 मार्क के लिए आ सकता है, दैट्स इट। फुल्ली सॉल्युबल, क्या बोल रहे हैं वो, फुल्ली सॉल्युबल है। नेक्स्ट दे आर टेलिंग द बॉन्ड, फॉर्मिंग अ बॉन्ड दैट इज Cl2 Br2, जैसे से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए ये सब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इफ वी गो विद यही बोल रहे हैं, देखो क्लोरीन विथ हॉट अल्कली रिएक्शन है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप 7 एलिमेंट। ये कैसे एक्सप्रेशन पार्ट मैंने दिया, यू कैन गो थ्रू विद योर टेक्स्ट बुक, दैट देयर यू कैन राइट दैट आंसर ऑल्सो। अगर आपको लिखना है वो आंसर लिख सकते हो टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप 18 फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप 18 में अगर आप देखोगे, सी मोनो एटॉमिक, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस जो एलिमेंट है हम लोग का नोबल गैस है। क्या है एलिमेंट, नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक, ये ध्यान में रखो। स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्प्रेंगली सॉल्युबल। नेक्स्ट, because the only type of inter-atomic interaction in this element is weak dispersion force. ये क्यों है भाई, क्यों उनका melting point boiling point low है, there may be some reason. So what is that reason? Because the only type inter-atomic, हम लोग जो बोलते हैं ना inter-atomic interaction, उन दोनों के इसमें जो होता है, हमारे एलिमेंट्स के बीच में जो होता है, वो उसका फोर्स जो है कैसे है, डिस्पर्शन फोर्स बहुत वीक है। For that reason
दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल। अगर वो ज्यादा होता तो पूरा सॉल्युबल हो जाता था, जैसे हम लोग देखते हैं। इफ वी कंपेयर बेसिक एग्जाम्पल, अगर हम लोग ले सॉल्ट अगर पानी में डालेगा तो इट कम्प्लीटली डिजॉल्व। क्यों? बिकॉज डिस्पर्शन फोर्स में ज्यादा रहता है, बट हियर द डिस्पर्शन फोर्स इज वीक। Helium has a lowest boiling point. It is mentioned that is 4.2 Kelvin of any substance. It has an unusual property of diffusion through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass or plastic. This is the basic property of noble gas element. अभी हम लोगों ने क्या देखा है अब तक? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने एटॉमिक रेडाई देखा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, एटॉमिक रेडाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद में हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी क्या क्या है जो विजिबल, हम लोग के आईज के क्या क्या विजिबल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब के बारे में, कलर, वोडर, टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ विल टॉक का अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। किसी ने भी पूछा तो तुमको ये सब लिखना ही है। व्हाई इट इज शोइंग दिस डिफरेंट कैरेक्टर? ऑक्सीजन एलिमेंट डिफरेंट क्यों है बाकी लोग के एलिमेंट से? के ग्रुप में जो एलिमेंट है 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन क्यों जरा डिफरेंट बता रहे, क्यों अपने आप में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है हम लोगों को? सो व्हाट आर दैट रीजन दिस इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट कम टू द हैलोजन फैमिली। हैलोजन में भी एक है ऐसा एलिमेंट, फ्लोरीन, जो हाईलाइट कर रहे हैं हम लोगों को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देयर मे बी सम रीजन, anomalous behavior of fluorine। क्यों है भाई? Fluorine differ from other member of a halogen family. Same. First reason है size, high electronegativity, जो हम लोग ने कहा किसको देखा, ऑक्सीजन को देखा। नेक्स्ट, नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रीजन सेम ही है, यू कैन सी दैट। अब इफ यू गिव अ लुक हियर, फ्लोरीन हैज वेरी स्मॉल साइज, very high electronegativity, high ionization enthalpy, no ED। ये तो हम लोग का बेसिक हो गया। बट अगर हम लोग बात करें डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो फ्लोरीन इज लो, देयरफॉर इट इज वेरी रिएक्टिव एंड द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन हैव मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। क्या है उसको, क्या बोल रहे हैं वो? मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट हैव लो एफ फॉर डिसोसिएशन एंथैल्पी। लो मतलब बहुत कम। देखो बॉन्ड डिस्पोजिशन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एफ वो बहुत कम है, इसलिए इट इज वेरी रिएक्टिव। अभी हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हाई है फ्लोरीन का, अगर हम लोग कंपेयर करें अदर चीज से। नेक्स्ट, आयनिक रेडाई, आयनिक एंड कोवेलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर if we compare with the other elements, other halogen members। नेक्स्ट है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो है HOF एसिड जो फॉर्म होता है, ऑक्सो एसिड जो है फ्लोरीन का, इट ओनली फॉर्म विद फ्लोरीन, अदर मेंबर्स के साथ वो फॉर्म नहीं कर रहा है। कौन सा? ऑक्सो एसिड। सो दिस आर द फ्यू रीजन that they are showing the anomalous behavior. These are the anomalous behavior of fluorine. That's it is different from the other element.